Hello guys, you all know that I am teaching for Gate Aerospace from long time. It's been 8 plus years and meanwhile I have got so many different doubts by different students. Some students are poor students, some students are average, some are very intelligent students. So sometimes I get very excellent doubts. Sometimes I get doubts like I cannot share the doubts and so intention behind these kind of call recordings I'm uploading on YouTube is I can share some very beautiful doubts on YouTube which is directly asked by my students. So I'm uploading these call recordings. Actually, see, I used to attend 5 to 6 hours of doubt session every day. Some students will call for 10 minutes, someone will call for half an hour, someone 20 minutes. It depends on the lecture, it depends on the topic, whatever is going on in the live class. And I have live classes, I have video courses, I have different types of programs for Gate Aerospace engineering preparation. So that's why different students are asking doubts of different level. Sometimes I feel a particular doubt is really interesting doubt. So I have call recordings of last 3-4 years. Before that I was not taking doubts on phone call. Before that students used to ask me directly in front of like one by one, so face to face. So that time but nowadays just after COVID from 2020 students used to ask doubts on audio call as well. Some audio calls are really very interesting. You can just go to playlist and you can find out different call recordings and you can see we are discussing a very good concept. Sometimes I really explain those concepts what I don't explain in live class because that is not needed. But if a student is going into that much depth, then I give them freedom and I give them my time, because the knowledge what I know I must share, and I do that with my students. So if you are also looking for personal level support, if you're also looking to join amazing coaching, great batches for Gate Aerospace Engineering, you're most welcome. You join me immediately. I have 19 different programs for Gate Aerospace for 2023 and 2024, and of course I will upgrade the programs for upcoming batches. So actually this doubt was asked by one of the student. He was preparing for 2021. So I found the call recording. So now you can listen the call recording. क्यों क्रिएट होगा? नहीं होगा. साउंड मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ भी बक रहे हो? मतलब साउंड मॉलिक्यूल मतलब सर जो मॉलिक्यूल है जैसे एयर मॉलिक्यूल्स. एयर मॉलिक्यूल्स, ये सर एयर मॉलिक्यूल. नोजल में तो हम बस एयर ही भेज रहे हैं ना, कोई पार्टिकल कुछ तो भेज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो भेज नहीं रहे. हाँ, एयर भेज रहे हैं, ठीक है. तो उसके कारण खुद का मतलब शॉक वेव इसके कारण भी होता है. यही मेरे को कभी कभी कंफ्यूजन है. जब देखो होता क्या है, देखो सीधी सी बात है. जैसे मान लो ना, ऐसे समझ लो, जैसे ये बहुत वैसी ही चीज है. जैसे मान लो कि क्लासरूम में गेट खुला और धड़धड़ा के बच्चे घुसे, तो बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जगह रहती नहीं जाने के लिए. अच्छा, पहले से जो प्रेजेंट होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है. हाँ, ऐसे करते वहां पे लोग जुड़ जाते हैं. ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है जी. हाँ, ठीक है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, वहां से लोग निकल क्यों नहीं पाते हैं. जैसे देखो जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो तुम देखते हो कि लोग पहले ही जाके गेट पे खड़े हो जाते हैं जी. ठीक है. अब वही लोग शॉक वेव हैं साले, जो वहां खड़े हो जाते हैं. समझे? ट्रेन अभी रुकी नहीं, भले पूरा टाइम मिलेगा, आधे घंटे ट्रेन रुकेगी, लेकिन पहले ही खड़े हो जाएंगे. ठीक है. से शॉक वेव क्रिएट होता है. मतलब हाँ, देखो शॉक वेव का सीधा मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती मॉलिक्यूल्स तक कि आगे भीड़ है. जी. देखो जब फ्लो हो रहा है तो आगे जाके भीड़ होगी ना भाई. अब कौन होगा जी. तो वो इन्फॉर्मेशन पीछे वालों तो जानी चाहिए कि नहीं आगे नहीं जाना है. तो सब सोनिक में तो वो इन्फॉर्मेशन जाता है कि भाई आगे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आराम से चलो. चल जाता है तो वो लोग मतलब साइड हो जाता है. नहीं, साइड नहीं होते हैं, वो लोग का स्पीड स्लो होता है, इसीलिए सब सोनिक फ्लो होता है. इसीलिए सब सोनिक फ्लो में ऐसा लफड़ा नहीं होता. जी हाँ, ठीक है. लेकिन अब जो आगे जैसे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल्स एक लाइन से खड़े हैं, तो जो पहले नंबर मॉलिक्यूल है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फील करेगा, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन भेज देगा, तो वो इन्फॉर्मेशन 10वें तक पहुंच जाएगा. लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन भेजने का प्रक्रिया स्लो रहा, इन्फॉर्मेशन की स्पीड स्लो रही और 10वां मॉलिक्यूल फास्ट रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन से पहले लड़ जाएगा सबसे जाकर के.
यस सर, तो वो जैसे ही कहीं पर जाके घुसेगा 8-10 लोगों को लेके डूब जाएगा उसी में, मर जाएगा उसी में। यस सर। तो अब वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, वहां पे रिवर्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ऐसा प्रोसेस वहां पे एक जोन बन जाएगा जिसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। जी। और गेट में तो एक बार शायद यही पूछा हुआ है कि उसका थिकनेस कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर का थिकनेस होता है शॉकवेव का। जी हाँ, ठीक है, ये सब चीजें हैं। जान लो सूरज, रात रात भर तुमको हम डाउट क्लियर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमको तुमसे रैंक चाहिए। तुमको हमसे जो चाहिए ले लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जहां डाउट है क्लियर कर लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सर 150 रैंक आ गई, सर 90 रैंक आ गई, सर 80 रैंक आ गई। हम बहुत रैंक देखे हैं अपनी लाइफ में, हमको स्टार परफॉर्मर चाहिए। मेहनत करो एकदम चाप के। ऐसे ही जो जो डाउट होता जाए ना, सब पूछते जाओ। और डाउट होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डाउट होने का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सर ये क्लास में डिस्टर्ब नहीं ना करते हम ज्यादा। नहीं, क्लास में कोई बात नहीं, क्लास में जो इन्फॉर्मेशन पूछा करो। हाँ, कभी कभी जो जैसे कि तुमको जैसी बात पूछते हो कि जो कि वहां पे मतलब उससे तो हम कह देते हैं कि नहीं इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुमको डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हैं, तो ये हमको पूरा ये हक है कि हम तुमको क्लास में रोक भी दें कि सूरज ये वाला बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जब भी ऐसा देखो, क्योंकि तुमको नहीं पता ना कि वो डाउट उस चीज से कितना रिलेवेंट है, लेकिन हमको पता है कि वो कितना रिलेवेंट है। देखो, हम किसी डाउट को ना इररिलेवेंट नहीं कहते। डाउट होता है, उसको बताने के लिए हो सकता है कि बाद में बताया जाए, क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे उससे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा डाउट पूछ देते हैं कि उसमें इतना मजा आता है कि भले ही वो इररिलेवेंट है, लेकिन उस पे हम क्लास ले देते हैं, तो वो अलग ही नुकसान है। ठीक है। अब जैसे आज की क्लास में क्या हुआ, आज की क्लास में बच्चों को स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सब बात जम के नहीं समझ में आ रही थी। अच्छा, अभी जो क्लास लिए 9:30 से, हाँ, उन्होंने जम के नहीं समझ आ रही थी उन लोगों को बात। तो अब जैसे अब भाई समझाना पड़ता है, ये एग्जाम्पल नहीं बात समझ रही है, फिर वो लड़की नहीं समझ में आ रहा है, उस लड़के को नहीं समझ में आ रहा, फिर सबको समझ में आ गया, हाँ ठीक है सर समझ में आ गया। फिर अब देखो, ये तुम कैसे जानोगे सबको समझ में आ गया? क्रॉस क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उसी में लोटपोट हो जाते हैं, मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है क्रॉस क्वेश्चन के टाइम। सर एक्चुअली क्या होता है, सबका मैन पावर एक जैसा नहीं होता है ना, कोई ऑब्जर्व कर लेता जल्दी, कोई मतलब कोई तो ये भी समझ जाता है कि अच्छा सर क्या बोलने वाले हैं जी, कोई अपने वर्ड में भी बता देता है, मतलब अगर समझ जाता है। वही चीज हमको यही चाहिए। बच्चे, अगर कोई बच्चा सीख ले कोई टॉपिक को, तो वो इतना कैपेबल हो कि वो उसको पढ़ा दे किसी को। जी, अगर मेरा स्टूडेंट इस काबिल नहीं बना कि वो किसी को पढ़ा दे, तो फिर मेरा मतलब पढ़ाना व्यर्थ है। फिर तुम जाके किसी भी अंडू झंडू से पढ़ लो भाई। बिल्कुल सर। नहीं, अभी कॉन्फिडेंट एकदम प्रोपल्सन में आ रहा है, तो कैपेबिलिटी रखते पढ़ाने का, बच्चा है। हाँ, बताते हैं। अरे यार, जानते हो लोग ना अच्छे स्टूडेंट निकालते हैं, तुम देखना हम अच्छे टीचर्स बनाएंगे एरोस्पेस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तुम लोग आगे जाके तुम लोग मस्त पढ़ा सकते हो किसी को भी, जैसा प्रोपल्शन हम पढ़ा रहे हैं ना, और आगे जाके जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे 1 by 1 मजा आ जाएगा तुम लोग को। तुम तो पढ़े हो यार, तुम तो जानते हो कि हाँ मजा आता है। जी, बहुत मजा आता है। तो सर आपका क्लास 3 दिन होता है, हम बोर हो जाते हैं कि मतलब कब क्लास आए, ऐसा फीलिंग होने लगता है। अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा, मतलब एकदम फील हो रहा है। अभी हम रूम में भी अकेले हैं, मेरा पार्टनर नहीं है कोई। हाँ, तो बस ऐसे ही। नहीं ठीक है। तुम सारा मौका पर दे लिए हो?